Good morning students. Today we will do brain teasers of unit 10 angles. Here our question 1 is tick the correct answer. As you can see here 4 options are given and we have to tick a correct option. So A part is the angle made between the hands of a clock at 2 o'clock is an dash angle. It means here we have to tell the type of angles. When there is 2 o'clock in a clock, एक क्लॉक में जब 2 o'clock होंगे then the position of the hands of the clock form an angle. जो क्लॉक की हैंड्स होंगी 2 o'clock पर जो उनकी पोजीशन होगी उस पोजीशन से जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा उस एंगल की हमने टाइप बतानी है, whether it is obtuse, acute, right or straight. Now here you can see the clock and here is time in this clock is 2 o'clock and position of hands and the big hand at the 12 and small hand at the 2. तो इस hands की position से जो angle form हो रहा है, which type of angle is this? Acute angle. Yes, very good. This is an acute angle. क्योंकि ये अगर straight हो जाता 3 o'clock होता तो ये right angle हो जाता. अब ये इस जो पोजीशन है इस एंगल की ये 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल की पोजीशन है, नीचे की ओर झुका हुआ है ये एंगल. तो इट मीन्स यहाँ पर कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है? अक्यूट एंगल. जैसे कल हमने जैपनीज़ फ़ैन में भी देखा था, तो जब वो कम खुला हुआ होता है जैपनीज़ फ़ैन तो उस टाइम में जो क्लॉक की जो एंगल होता है वो कैसा होता है? अक्यूट. हियर यू कैन सी द शेप ऑफ जैपनीज़ फ़ैन एंड द एंगल फॉर्म बाय द 2 o'clock, 2 hands ऑफ द क्लॉक. इन दोनों की शेप सेम है और इस शेप में जब जैपनीज़ फ़ैन की जो इस टाइप की शेप होती है उसमें कैसा एंगल बनता है? Acute angle. So here our correct option is acute. So we will tick the second option, that is acute, and we will also write acute in this blank space. Now here is part B. There are dash right angles in a straight angle. It means how many right angles are there in a straight angle. Straight angle में कितने right angles होंगे? Our 4 options are 3, 2, 1 and 4. Now here you can see a straight angle. The degree measure of a straight angle is 180 degree. Straight angle की degree measure कितना है? 180 degree. And degree measure of a right angle is 90 degree. When we add one more right angle, one more degree measure of 90 degree, 90 और 90 को जब हम प्लस करेंगे, here our answer is 180 degree. It means in 180 degree or in a straight angle we have 2 right angles. Clear? We can also learn this from this angle. Now see in this angle. Firstly here AOB is a straight angle. Now we construct a line. यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई जिससे कि AOC इज़ अ राइट एंगल. AOC 90 डिग्री का एंगल बन गया एंड जब हम इस साइड से देखेंगे तो BOC इज़ ऑल्सो अ राइट एंगल. सो ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर जो हमारे पास 2 राइट एंगल्स हैं. इट मीन्स वन स्ट्रेट एंगल हैज़ 2 राइट एंगल्स. एंगल AOC एंड एंगल BOC आर 2 राइट एंगल्स बट एंगल AOB इज़ अ स्ट्रेट एंगल. जब हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे वी हैव अ स्ट्रेट एंगल, एंगल BOA और AOB straight. It means we have 2 right angles in a straight angle. So we will tick at second option and write 2 in blank space. There are 2 right angles in a straight angle. Now come to part C. The 2 rays forming an angle are called the dash of an angle. Our 4 options are arms, angle, degree और vertex. It means 2 rays forming an angles. जिन 2 rays से एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बनता है, वो 2 rays को हम क्या कहते हैं एंगल की? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है एंड हेयर 2 rays आर OA and OB. These 2 rays form an angles and OA and OB, the 2 rays are called the arms of the angle. These 2 rays are the arms of the angle and O is the vertex of the angle and name of the angle is AOB or BOA. So here the 2 rays जो angle form करती हैं that are called the arms of an angle.
So here we will tick the first option, arms, and we will write arms in blank space. Here our part D is an angle of measure equal to dash is an obtuse angle. Here our four options are 89 degree, 91 degree, 80 degree and 81 degree. Here we have to tell which degree measure of the angle is obtuse angle. So we all know the obtuse angles are between the 90 degree and 180 degree. It means obtuse angles are greater than 90 degree and less than 180 degree. So here we will check which one is the which degree measure of the angle is greater than 90 degree but less than 180 degree, as these are those are the obtuse angles. So 89 and 91 is greater than the 90 and less than 180. So degree measure 91 degree is the obtuse angle. So here we will tick the second option and write 91 degree in the blank space. Now here our E part is sum of four angles of a rectangle is equal to dash degrees. It means रेक्टेंगल के जो फोर एंगल्स हैं उनको अगर हम प्लस करें तो बट विल बी आर आंसर. सो आर फर्स्ट ऑप्शन इज 180 डिग्री, सेकेंड इज 90 डिग्री, थर्ड इज 360 डिग्री एंड फोर्थ इज 100 डिग्री. हेयर यू कैन सी अ रेक्टेंगल एंड हेयर फोर एंगल्स आर मेड. चार एंगल्स बने हुए हैं रेक्टेंगल में और एंड ऑल एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री. एल शेप में है सभी एंगल्स आप देखोगे. इट मीन्स यहाँ पर कौन सा एंगल बना हुआ है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का. तो ये चारों एंगल की मेजर डिग्री मेजर है इन चारों एंगल्स की 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो हेयर यू कैन सी 4 टाइम्स 90 डिग्री है यहाँ पर. अगर हम इन फोर एंगल्स का सम लेंगे, फोर एंगल्स बने हुए हैं इनका सम लेंगे देन सम इज इक्वल टू इट मीन्स यहाँ पर हम 90 प्लस 90 इनको प्लस करते हैं 9 9 18. इन दोनों 90s को प्लस किया देन इन दोनों 90s को भी प्लस कर लेंगे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो यहाँ पर भी 180 और जब हम इन चारों को प्लस करेंगे सो ये आंसर इज 8 8 16 कैरी 1 360 डिग्री. इट मीन्स हमारी जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम टिक कर देंगे. तो किसी भी रेक्टेंगल के फोर एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री. डिग्री यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे. तो जो हमने ये रफ वर्क किया था इसे बुक पे नहीं करना, ये आपने अपनी रफ नोटबुक पर करके देखना है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. आर ए पार्ट इज एन एंगल हैज डैश वर्टेक्स एंड डैश आर्म्स. एज यू ऑल कैन सी here is an angle and it has one vertex and two arms, where two line segment or the two ending point or meeting point of two line segment or two rays is called the vertex and the two line segments are called the arms of that angle. So here an angle has one vertex and two arms. Now come to part B. A 75 डिग्री एंगल इज एन डैश एंगल. जो डिग्री मेजर है 75 डिग्री ये किस एंगल की होगी. इट मीन्स हेयर वी हैव टू टेल द टाइप ऑफ एंगल, अक्यूट, obtuse, स्ट्रेट और राइट. तो हम सब जानते हैं कि जो अक्यूट एंगल होता है उसका डिग्री मेजर 0 to 90 डिग्री है. अक्यूट एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आते हैं. तो इट मीन्स 75 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है. तो इट मीन्स ये कैसा एंगल है, अक्यूट. ये 75 0 और 90 के बीच का एंगल है. तो ये कैसा एंगल है, अक्यूट एंगल. हियर वी विल राइट अक्यूट. नाउ कम टू पार्ट सी. ईच एंगल ऑफ एन रेक्टेंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ डैश डिग्री. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक रेक्टेंगल के फोर एंगल्स थे, उन फोर एंगल्स का सम था 360 डिग्री. और वो सभी एंगल्स कैसे थे, किस शेप में थे, राइट एंगल की शेप में, एल की शेप में आते हैं सारे एंगल्स. देखिए रेक्टेंगल के फोर एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के. लेकिन हमको यहाँ पे बताना है ईच एंगल मीन्स हर एक एंगल का डिग्री मेजर क्या है 90 90 90 एंड 90. तो हर एक एंगल कितने डिग्री का है 90. हमको डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिग्री यहाँ पर राइट किया हुआ है. नाउ कम टू पार्ट डी. देयर आर डैश एंगल्स इन अ स्क्वेयर. इट मीन्स हमको बताना है कि स्क्वेयर में कितने एंगल्स होते हैं. यू कैन सी अ स्क्वेयर हेयर.
एक स्क्वायर देख सकते हो, इसमें कितने एंगल्स बने हुए, जितने कॉर्नर्स होंगे उतने ही इसके एंगल्स होंगे। हेयर आर 4 कॉर्नर्स, इट मीन्स हेयर आर 4 एंगल्स, एज 4 कॉर्नर्स आर कॉल्ड द वर्टेक्स। सो हेयर आर 4 एंगल्स, देयर आर 4 एंगल्स इन अ स्क्वायर। नेक्स्ट है देयर आर डैश एंगल्स इन अ ट्रायंगल। नाउ अब हमको बताना है कि ट्रायंगल में कितने एंगल्स होंगे। हेयर यू कैन सी अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी आप देखोगे 3 कॉर्नर्स हैं, इट मीन्स इट ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स हैं और जहाँ वर्टेक्स होगा वहीं एंगल फॉर्म होगा। तो हेयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल। नेक्स्ट है एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल। जो एंगल 180 डिग्री का होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट। नाउ हेयर कम क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ एनी मेजर। हमने एंगल्स बनाने हैं लेकिन इनका कोई मेज़र फिक्स नहीं है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। इट मीन्स प्रोट्रैक्टर की हेल्प से नहीं बनाने, आप विद स्केल की हेल्प से आप ये एंगल्स बनाओगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंगल्स आप ड्रॉ करोगे उनके नेम हमने यही राइट करने हैं जो गिवन है। जैसे फर्स्ट है एंगल ए ओ बी, तो हम इस एंगल की कोई भी अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, कैसा भी एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एंगल का नेम कैसे लिखेंगे हम, ए ओ बी। इसको हमने मेज़र करके नहीं बनाना, बिना प्रोटेक्टर की हेल्प के सिर्फ स्केल से बनाना है। तो जैसे हमने फर्स्ट कर दिया एंगल ए ओ बी, इसी तरह से आप सेकंड एंगल बनाओगे, एक्स वाई जेड नेम लिखोगे, एक्स वाई जेड, वाई इज़ द वर्टेक्स, वाई आप सेंटर में है तो इसको वर्टेक्स में लिखोगे। इसी तरह से एंगल एम एन पी बना लोगे किसी भी शेप में, चाहे वो राइट हो, ऑब्ट्यूज हो, अक्यूट हो या फिर स्ट्रेट हो। क्लियर। तो ए पार्ट मैंने कर दिया है, बी और सी पार्ट आप खुद से करोगे। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमको बताना है कि जो 2 फिगर्स बनी हुई हैं, अभी मैंने 1 ड्रॉ की है, बुक में 2 फिगर्स हैं, इन 2 फिगर्स में कितने एंगल्स बने हुए हैं। तो हियर ए पार्ट इज, फिगर की शेप इस टाइप से हमको नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे जितने कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर्स, दैट कॉर्नर्स आर कॉल्ड द वर्टेक्स, और उतने ही एंगल्स होंगे। तो देखेंगे 1 ये राइट एंगल है क्योंकि ये एल शेप में है, सेकंड एंगल, देन 3, 4 एंड 5। इट मीन्स हेयर आर 5 एंगल्स इन दिस फिगर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 एंगल्स। तो आपने ये क्वेश्चन बुक में ही करना है, फिगर के नीचे आप लिखोगे 5 एंगल्स। क्वेश्चन 1 एंड 2 ब्रेन टीजर का बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ एनी मेजर, वो थर्ड क्वेश्चन आपने नोटबुक में एंगल्स ड्रॉ करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भी बुक में ही राइट करना है। हेयर इज पार्ट बी, यहाँ हम देखेंगे कितने एंगल्स बने हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये शेप रेक्टेंगल की है, रेक्टेंगल में 4 एंगल्स होते हैं। फर्स्ट एक एंगल तो ये, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। दूसरा आप देखोगे एक छोटा एंगल है, 2 यहाँ बने हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इट मीन्स यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंगल्स बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 एंगल्स। एक बार आप फिर से देख सकते हो कि यहाँ पर कितने एंगल्स हैं। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर 1 एंड 2 और ये बड़ा एंगल 3, 4, 5 एंड ये 6, 7 एंड 8 एंगल्स आर देयर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। फर्स्टली we draw a line segment of PQ of length 6 centimeter at P draw an angle of measure 60 डिग्री। तो हमने PQ जब लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की, तो पॉइंट P पर हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। देखिए इसे कैसे करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हम नोटबुक पे करेंगे। नोटबुक पर आप एक स्केल प्लेस करोगे और आप 0 से 6 तक, 0 to 6 हम 6 सेंटीमीटर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन सेगमेंट को हम नेम देंगे पी क्यू और नीचे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट का मेजर भी राइट कर देंगे 6 सेंटीमीटर। नाउ एट पी, अब हम पी पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, किसकी हेल्प से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से।
अब आप देखेंगे जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर है वो हम पॉइंट P पर रखेंगे और जो ज़ीरो वाली लाइन है ये इस एंगल के आर्म पर आ जाएगी, ये हमारी लाइन सेगमेंट पर आ जाएगी। अब हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 60 से हम यहाँ आकर के यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे और वो हमारा एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा। जब हम इसको P के साथ, इस मार्क को P के साथ ज्वाइन करेंगे देन देयर इज़ एंगल ऑफ 60 डिग्री। इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे, देन हियर इज़ एंगल ऑफ 60 डिग्री। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने नोटबुक पे ही करना है। आर ए पार्ट इज़ 110 डिग्री। यहाँ पर हम 110 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो आप देखोगे 110 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। इट मीन्स ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये एंगल आप खुद से ही कंस्ट्रक्ट करोगे, मैं आपको बस इसकी एक शेप बताऊंगी कि किस शेप में बनेगा ये। आप फर्स्टली आप एक स्ट्रेट लाइन लोगे, तो उस लाइन के आप इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर किसी भी तरफ प्रोट्रैक्टर का सेंटर प्लेस करोगे और ज़ीरो से, अगर आप यहाँ पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर प्लेस कर रहे हो तो इस तरफ ज़ीरो से काउंट करना स्टार्ट करोगे और 90 को क्रॉस करके आप 100 देन 110 पे एक मार्क लगाओगे और उसे ज्वाइन कर दोगे, तो आपके पास 110 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस शेप में आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल की शेप में। अगर आप इस एंगल को दूसरी तरफ, आप इस लाइन सेगमेंट के दूसरी तरफ कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप यहाँ पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर प्लेस करोगे और इस तरफ आपकी जो ज़ीरो होगी उस ज़ीरो से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे और 110 इस तरह से आएगा, तो आप वहाँ पे मार्क लगाओगे और इसको ज्वाइन कर दोगे, तो यहाँ पर आपका एंगल 110 डिग्री का बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर एंगल का नेम भी देना है, कुछ भी नेम दे सकते हो, एंगल ABC, और एंगल का डिग्री मेज़र भी आपने साथ में राइट करना है। तो एंगल आपने खुद से बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। Now come to part B. Here we have to construct the angle of 90 degree. 90 डिग्री का एंगल आप सभी जानते हो, दिस इज़ अ राइट एंगल और शेप ऑफ 90 डिग्री एंगल इज़ L शेप में बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ये। तो आप ये किसी भी तरफ आप विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ही आपने इस एंगल को बनाना है। तो इस तरह से आप एंगल को बना करके यहाँ लिखोगे 90 डिग्री और एंगल का नेम कोई भी DEF, इस तरह से आप कोई भी नेम अपनी मर्जी से दे सकते हो। Now come to part C. Here we have to construct angle of 25 डिग्री। जैसे आप देख सकते हो कि 25 डिग्री एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल है। इट मीन्स ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, इट मीन्स ये अक्यूट एंगल है। तो इसकी शेप इस टाइप से बनेगी। आप एक स्ट्रेट लाइन लोगे, यहाँ प्रोट्रैक्टर का सेंटर प्लेस करोगे और 0 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, तो 20 और 30 के बीच में जो लाइन आएगी वहाँ पर आप मार्क करोगे और उसे ज्वाइन कर दोगे, तो इस शेप में आपका 25 डिग्री का एंगल बनेगा। नाउ कम टू पार्ट डी। हेयर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ मेजर 165 डिग्री। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है बिकॉज 165 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। सो यहाँ पर जो शेप बनेगी वो ऑब्ट्यूज एंगल की शेप में एंगल बनेगा। आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ही एंगल्स को ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे रफली बना रही हूँ ताकि आपको शेप क्लियर हो जाए कि एंगल किस शेप में बनेगा, लेकिन आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ही एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ से एंगल को ड्रॉ करेंगे तो प्रोट्रैक्टर का सेंटर हम यहाँ रखेंगे और यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 165 आपका लगभग यहाँ तक आएगा, 160 और 170 के बीच में जो आएगा पॉइंट, तो उससे आप इस लाइन को मेज़र कर दोगे। तो यहाँ पर हमारा 165 डिग्री का, क्योंकि ये 180 से बहुत थोड़ा ही छोटा है, 180 में स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ 15 डिग्री का बच जाएगा और बाकी 165 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने इस शेप में इस एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेटा हम अपना ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे। हियर इज़ योर होमवर्क। आपने क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 अपनी बुक में कंप्लीट करना है एंड क्वेश्चन 3, 5 एंड 6 अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है अच्छे से कि क्वेश्चन 6 आपने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ही एंगल्स को ड्रॉ करके अपनी फेयर नोटबुक पे करना है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।